के लिए स्वागत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की ब्रीफिंग मैडम शुरू कर दी जाए। Namaskar. Today is the fourth day where after the Prime Minister's address to the nation on building a Atmanirbhar Bharat, we have been announcing in several tranches the various steps that we want to take कि आज चौथा दिन है जब विस्तृत जानकारी दी जा रही है आर्थिक पैकेज के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की। Little assistance which as a government we should and do it in time, and therefore we had a Pradhan Mantri Garib Kalyan package. Post that we also ensured that people don't suffer with having to file their returns or comply with taxation and related things. So in stages we have announced relief for सरकार की प्रतिबद्धता है, the MSMEs and हम इस तरफ BFCs कमिटेड and हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो कोरोना के संकट के बीच, चाहे वो टैक्सेशन के मामले से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर हो या फिर we should prepare ourselves also for tough competition so that we become strong, we are able to be first of all self-reliant and at the same time be sure we are strong enough to face the challenges of the global value chains and also be ready to integrate. I repeat, when we talk of self-reliant Bharat, when we talk of Atmanirbhar Bharat, we are not looking inwards. It's not isolationist policy. It is certainly making India strong, making India rely on its strength and be ready to जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि भारत और मजबूती की तरफ बढ़ेगा, न कि इस तरफ कि अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग बांटा जाए या आइसोलेशन में रखा जाए। हमारी कोशिश है कि मजबूती के साथ हर क्षेत्र को बुलंद किया जाए। Participate in that sectoral related activities, bring in transparency in processes and so on. So once we decongest sectors, नीतियों को सरल बनाने की जरूरत है। We can also provide the necessary boost. That sector जो दिक्कतें पैदा करती हैं, लेकिन उन नीतियों को और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है जिससे कि अलग-अलग सेक्टर्स में काम को बढ़ावा दिया जा सके और निवेश और साथ ही साथ उद्योग के रास्ते ज्यादा से ज्यादा खुल सकें जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। Strong track record in taking up reforms, deep systemic reforms. I'll just highlight those reforms which are worth recalling, and on those reforms it was public knowledge and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer, today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम चलाई गई, जो पैसा हमने सीधे लोगों के खाते में भेजा, आज वो एक बेहतरीन साधन हो रहा है इस कोविड काल में लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने में। Companies waited for decades to have their insolvency related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, schemes which existed, SARFAESI or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business,
so that India becomes an attractive destination for investment. हमने कुछ कदम उठाए हैं You also have व्यापार आसान करने के लिए। हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा हब बने जहां दुनिया भर से कंपनीज आके अपना व्यापार कर सकें और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भारत आगे बढ़ सके। And performing well, but still they needed to have more professionalism, so that was also, and giving independence for them. Because that's an area in which I would take extreme pride to say, between 2014 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time, the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense. Power sector reforms. Udai was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. तो नीतिगत Today's announcements are focusing on structural reforms के बारे में आज घोषणाएं होने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही हैं जहां-जहां रिफॉर्म्स की जरूरत है प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बना के रखे हुए हैं और रिफॉर्म्स के आधार पर ही हम आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। We see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked. And certainly it will lead to a lot more employment possibilities. की घोषणा करने वाले हैं उससे निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ लोगों में भरोसा भी बढ़ेगा कि निवेश के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे। We can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से उन कदमों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जिससे निवेश बढ़ेगा आगे चलकर और भारत सरकार की कोशिश है निवेश बढ़ाने की। And because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, और फरवरी में बजट पेश हुआ था। उसके बाद फाइनेंस बिल जैसे ही संसद से पास हुआ, उसके बाद बजट सत्र खत्म हुआ। कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं, हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ा। और अब आत्मनिर्भर भारत के जरिए हमारी कोशिश है भारत को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने की। The policy reforms to fast track investments. In the last couple of months, an empowered group of secretaries has been formed who also looked at project development, and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being worked out. This will make them compete for new investments, and promotion of champion sectors such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atmanirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least 3 years back as an initiative
to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive. आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले इस लक्ष्य को लेकर मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया लॉन्च करने का मकसद ये था कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार को आसान बनाना, रोजगार को बढ़ावा देना, जॉब की संख्या ज्यादा करना, रोजगार की संख्या ज्यादा करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। The rule of law which prevails, and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here, and incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to clearly understand the purpose with which, when we talk of Atmanirbhar Bharat, it is on all these steps building India's strengths. हमें इस उद्देश्य को समझने की जरूरत है कि जो भी संस्थाएं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता कितनी है निर्यात के तौर पर, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम निर्यात को भी बढ़ावा दें, साथ ही मेक इन इंडिया को भी उस स्तर तक पहुंचाएं जिस स्पीड के साथ, जिस गति के साथ हमने 3 साल पहले शुरू किया था। Upgradation of industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, industrial land banks and also clusters have been recognized long time back. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन आधारभूत संरचनाओं के बारे में, और जहां पर जमीन उपलब्ध हो, जो उद्योग लगाने के लिए मौजूद हो, उनके बारे में बात करना जरूरी है। Location clear, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, have among them 3,300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क और SEZ हमारे देश में मौजूद हैं, जिनकी पहचान की गई है। क्लस्टर्स के हिसाब से काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल भी वित्त मंत्री ने क्लस्टर्स के बारे में बताया था। पोर्टल which will be running so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial parks also will get ranked by 2020-21 so that we know what is the level आने वाले 1-2 सालों में जितने भी देश में जो भी इलाके हैं जहां पर उद्योग लगाने की क्षमता है, जहां पर सोर्सेज मौजूद हैं, उनको रैंक किया जाएगा, उनकी रैंकिंग की जाएगी, और भारत सरकार ऐसे जमीनों की पहचान करेगी जहां पर उद्योग उस नेचर के हिसाब से लगाए जा सकते हैं, और भारत सरकार उद्योग लगाने में व्यापारियों की और व्यवसायियों की मदद भी करेगी। I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories, space sector where ISRO and others have been एविएशन से जुड़े मामले हैं, उनके बारे में वित्त मंत्री बता रही हैं कि एरोस्पेस से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट हो या फिर इस तरह से एविएशन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उसके बारे में हमारा फोकस है। नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो,
इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है, एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, SEZ, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि IIS पर मिलेगी, जिसकी GIS मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी। जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा। और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। The first of the 8 sectors that I want to speak about is coal. 8 क्षेत्रों में से पहला जो क्षेत्र है जो मैं बताने जा रही हूं वो कोल सेक्टर है। Speaking about the various steps, but I will run through about all the 4, even though the sequencing may be a bit different. We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability. हमारी कोशिश है कि हम कमर्शियल कोल माइनिंग की तरफ आगे बढ़ें ताकि जो सरकार की मोनोपोली है वो खत्म हो, जिससे रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। For people to participate for a range of coal blocks and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. But let's first understand, if India, which is the 3rd richest or which has the 3rd largest and 3rd large valued coal availability in its mines, in untapped mines,
meaning it has the third valuable deposit of coal, and we still import coal, and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available. हमारे देश में ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोल है, जिसकी मात्रा हमारे देश में ज्यादा है, और दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट है, तीसरा बड़ा ऐसा देश है जहां पर कोल की मात्रा सबसे ज्यादा है. Has got abundant coal, and we've been regulating it, suffocating it from producing ample quantity of coal which will be required by the industry. Economy can be benefiting from this सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां करती हैं. Not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment commitments of India are honored, and we benefit from gasification of coal. And also the coal bed methane also will be auctioned, so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit. जिन जमीनों पर कोयले की मात्रा ज्यादा है, मीथेन की मात्रा ज्यादा है, हम ऑक्शन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, और प्राइवेट सेक्टर में जाने से जो हम इंसेंटिव की घोषणा कर रहे हैं उससे फायदा पहुंच सके. राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैव दिस कोल, माइंड कोल, evacuated from there. So 50,000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided. So this is इसके लिए 50,000 करोड़ आवंटित की जा रही है राशि कोयला क्षेत्र के लिए. माइनिंग प्राइवेट सेक्टर में होंगे, और ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने, और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है. दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहाँ पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहाँ पर कोयला है, उसमें भारत आता है. उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा. और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा. लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी. कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है. और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले. कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था, अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है, और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज़्यादा हो पाएगा. और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा. गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें उनको. रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे. और यही नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा.
और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की एनहांस्ड एवैक्यूएशन की हम बात करते हैं, NCIL जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदानें हैं उसके लिए भी कोल प्रोडक्शन प्राइवेट ब्लॉक्स को दी जाए, उसके लिए भी इसमें अवसर उपलब्ध होंगे। I move to mining of minerals. We spoke about coal all the while. Now we talk about minerals. Minerals, the sectoral reform that we want to bring in order that we have a boost given for growth of the sector, better employment potential, and bring in state-of-the-art technology, is to now have a seamless composite exploration cum mining cum production regime. Earlier, somebody was doing the exploration, someone else had to again come and undergo the whole process of auction, bids and so on to start the mining, and then once the mining activity starts, the production is खनिजों के खनन के लिए भी जो भी उपलब्धता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, इस ओर सरकार का प्रयास है। A seamless composite exploration cum mining cum production regime is being brought in, so there is no uncertainty for somebody who invests a big quantum of money for exploration whether he'll be able eventually to to mine the mineral. So that system is going to make it easy. 500 mining blocks would be offered through this open transparent mechanism. And if I take the example of aluminium, the way in which things had happened, the prevailing by the prevailing setup, if somebody wants bauxite, which is a necessary raw material for aluminium, he had to go for an auction for bauxite. And then he would realize that he doesn't have enough power to generate, or power supply is erratic. Then he would turn around saying, can I have some coal from somewhere? If he doesn't get it, or if he doesn't have enough power supply, he ends up sitting with the raw material but not being able to produce aluminium. So many such people had left this country and gone and invested elsewhere because of these mismatched policy. So what we are now taking the example of aluminium telling you is joint auction of the necessary tool like bauxite and coal will happen so that it can enhance aluminium industry's competitiveness and will help aluminium industry now to हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रयास है कि जो खनिज हैं उनकी खनिज ब्लॉक्स हैं उनकी भी नीलामी की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल सके। अगर किसी के पास किसी को एल्यूमिनियम का उत्पादन करना है तो बॉक्साइट से लेकर जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके बारे में एक नीति बनाई जानी चाहिए, ब्लॉक्स के अंतर्गत आनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए ताकि एक मैकेनिज्म बन पाए, एक सिस्टम बन पाए और उसके आधार पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। That will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. So I've had a mine given to me, I've taken some mineral out of it, but later I've lost interest, I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there, nobody else benefits out of it. So now we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it so the country can benefit from it. Then the Ministry of Mines is in the process of developing a mineral index for different minerals. खनन मंत्रालय इस ओर लक्ष्य बनाया हुआ है या प्रयास किया जा रहा है कि हम इंडेक्स बनाएं, खनन से जुड़े इंडेक्स बनाएं, जहां पर भी ज्यादा मात्रा में खनिज होते हैं वो जमीनें तलाश की जाएं, इंडेक्स बनाया जाए और उसके हिसाब से सिस्टम काम करे। Steps that we're taking in order that this country, which is rich in minerals, gets timely served by the availability of the minerals for the industries to benefit from. जहां कोयले वाले में पहले पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स इनकी भी ऑक्शन करने की ऑप्शन दी जाएगी ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गैसिफिकेशन की जो बात की गई, इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा।
और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और यही नहीं, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए, रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश उसके ऊपर भी होगा। तो वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे, इससे भी उसको बल मिलने वाला है। और कोयले के क्षेत्र में एक ये बड़ा कदम है। कोल बेड मीथेन की जो बात करते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके। और 40% इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा। और कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है, उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे। और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी, और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा। जी, मिनरल इंडेक्स बनाने की एक बात हमने यहां पर की है, जिसको डेवलप किया जाएगा। और स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा उस समय जब वो अवार्ड की जाएगी माइनिंग लीसेस, उस समय उनको कर दिया जाएगा। थैंक यू। We now move over to talking about defense production. Make in India and self-reliance have now, as I said, become a partner in the sense of, for self-reliance, Make in India is absolutely necessary. And particularly when you're talking about critical industries like defense, we need to be self-reliant where we really can be. Of course, अब हम रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों के बारे में ऐलान करने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का प्रयास इसमें भी आगे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जो सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लक्ष्य रखे हैं, which have to be imported, they can be imported, and it continues. We are seeing very good latest weaponry coming also. But some of those which are being produced in India can be bought in India, and therefore we have now come to a conclusion that we shall notify. This is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we हमें हथियारों की एक लिस्ट बनानी होगी, उनकी पहचान करनी होगी, जो इंपोर्ट नहीं करे जाएंगे, जो भारत में ही बनेंगे। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized. और साल दर साल हम इसमें इजाफा करेंगे। जैसे जैसे हम अपनी कैपेसिटी की पहचान करेंगे, वैसे वैसे हम इस लिस्ट को भी बड़ा करते जाएंगे, जिसमें हथियारों को इंपोर्ट करने पर, उन हथियारों को, जिन हथियारों को हम बना सकते हैं, उन पर बैन रहेगी। PSQRs for weapons and platforms will all be honored, but those list of items which get notified can only be purchased from India. Indigenization of some imported spares will also be given priority. For years we have been producing spares which are good enough for even those imported vectors, imported weaponry, imported platforms. Unless we are able to do that,
the spares are also something which India probably can produce but are getting imported. So indigenization of imported spares. हथियारों के स्पेयर्स भी हम बना सकते हैं। ऐसे कई स्पेयर्स हैं जो देश में ही बन सकते हैं, लेकिन उनको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे स्पेयर्स को भी देश में ही बनाने की कोशिश की जाएगी और जो हथियारों की लिस्ट हम तैयार करेंगे उसे देश से ही खरीदा जाएगा, देश में बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। This is done in consultation with the Department of Military Affairs, and this will be an important step towards making sure that Indian producers of defense equipments which are absolutely meeting with the standards which the armed forces would want will be purchased from India. The next step in defense production related reform is to improve the autonomy, accountability and efficiency in ordnance supplies which are being made by the ordnance factories. And for this, we intend to corporatize ordnance factory boards. I like to emphasize here, हमारी कोशिश है कि जो भी फैक्ट्रियां, जो भी इंडस्ट्रियां हथियारों को बनाती हैं, हथियारों को बनाने का काम करती हैं, उनके लिए एक बोर्ड तैयार किया जाए, ऑर्डिनेंस बोर्ड, जिसके माध्यम से निष्पक्षता के साथ फैसले लिए जा सकेंगे। We want them to be better managed. We also eventually hope that they will get listed in the stock market. Ordinary Indian citizens can also buy shares in them. And through that we expect that the ordnance factory boards मार्केट में भी लिस्ट किया जा सकेगा, शेयर बाजार में भी लिस्ट किया जा सकेगा, ताकि जो आम लोग भी हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में या हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रियों में निवेश कर सकते हैं। यानी निवेश को खोले जाने का रास्ता रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। The next set of things about defense production is that FDI limits are being raised from 49% to 74%. Of course, it will have the security clearances and everything else, as always. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है 49% से 74% तक। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई होता है, इसकी जानकारी वित्त मंत्री दे रही हैं। Will be given for contract management purposes. Then we are, as I said earlier, a realistic setting for the general staff qualitative requirements, the GSQRs as they are known, of weapons and platforms will be made, because sometimes unrealistic quality requirements are established and quite a lot of time is spent in searching for suppliers who will meet all those requirements. You end up with just one supplier, and just buying it from one supplier is not permitted, and then you do the entire circle all over again. So realistic setting of qualitative requirements is something on which we'll place emphasis, and above all, overhauling of the trial and testing processes. हथियारों की क्वालिटी को लेकर भी विचार किया जा रहा है कि सिर्फ एक सप्लायर से इसकी खरीद, हथियारों की खरीद ना हो। उद्देश्य ये रखा गया है सरकार की तरफ से कि क्वालिटेटिव मेजर्स उठाए जाएं, यानी जो उपयोगी, जो ज़रूरी कदम हैं रक्षा क्षेत्र के उपकरण से जुड़े हुए, वो अपनाए जाने चाहिए। रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है, और पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए, और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी, ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो। भारतीय
कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके। कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत लंबा समय, कई बार वर्षों तक लग जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रोक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें। The next three relate to civil aviation. I'll be fairly speedy about them. One relates to airspace management. The next relates to PPP and airports which are being given for management and maintenance. Then MRO hub. The three are put together relating to civil aviation. The first is the airspace तीन बातें management. जो सिविल एविएशन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो है एयर स्पेस मैनेजमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और MRO फंक्शनिंग। ये तीन क्षेत्र के बारे में बताने जा रही हैं वित्त मंत्री। That's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations not through the shortest route but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. जो लंबी दूरी की जगहें हैं और जो छोटी दूरी की जगहें हैं, एयर स्पेस मैनेजमेंट की बात कर रही हैं वित्त मंत्री, जिसमें कहा जा रहा है कि उसे रैशनलाइज किया जाएगा, उसे कोशिश की जाएगी कि जहां लंबी दूरी की जगहें हैं उन्हें कम किया जा सके इस समय। And therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time. ताकि हम अपने गंतव्य तक जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं कम से कम समय में हम पहुंच सकें। प्रयास किया जा रहा है कि लंबी दूरी को कम किया जा सके। Very big implication on India's fuel import bill and also for civil aviation
which in India has biggest potential in growth. Civil aviation is up for a big leap. So the airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis. 6 एयरपोर्ट देश के नीलाम होंगे, इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. 12 airports which they are already holding for better world-class facilities to be brought in. So majorly airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget but the AAI. और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. अगर एयरपोर्ट्स नीलाम होंगे, ज्यादा निष्पक्षता आ पाएगी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाएगी. Of investments are expected to get 13,000 crores. ताकि निवेश की सीमाओं को भी बढ़ाया जा सके सिविल एविएशन क्षेत्र में. Increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers. The third in this, because it's all pertain to civil aviation, is making India an MRO hub. This was mentioned also in the budget. Maintenance, repair and overhaul of aircrafts is a big business. Most of the Indian aircraft जो सिविल एविएशन क्षेत्र में हमारी अगली कोशिश है वो तीसरा कदम एमआरओ हब बने भारत, जिसमें एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस को लेकर कामकाज हो. Overall, India has all the capacities, manpower skills required, soft skills required, and also India can then be the center for many of the flights which go towards Southeast Asia, long distance to Australia, similarly westwards also. If we make sure that MRO's ecosystem is created in India, for which the tax regime has already been altered so that it favors setting up MRO in India, this is a major step that we want to make sure. अगर एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस को लेकर भारत में कामकाज होता है और वो सही तरीके से आगे बढ़ता है, तो चाहे साउथ ईस्ट एशिया में सफर करना हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में या वेस्टर्न देशों में, पश्चिमी देशों में सफर करना हो, वो आसान बनाया जा सकता है. Ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are 3 put together reforms for the civil aviation sector. सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो 3 बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए. इसके लिए हवाई क्षेत्र में, यानी कि जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है. इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसमें लोगों का समय भी जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है. अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे, जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे. मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे. इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टर्बाइन फ्यूल वो बचेगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा. ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी. दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है. और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को
डाउन पेमेंट भी लगभग 2,300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है, और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा, और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हों, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हों, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हों, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छिनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है, उसमें भी बचत होगी, और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे, और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है। I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. बड़ी बात कह रहे हैं वित्त मंत्री। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी बिजली वितरण कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। Soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GENCOs happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GENCOs. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step. हमारी कोशिश है कि जो बिजली क्षेत्र में लगातार इनकंसिस्टेंसी यानी लगातार जो बिजली क्षेत्र में घाटा हो रहा है उसको पाट पाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और इसी वजह से प्राइवेट मॉडल पर कामकाज हो रहा है, निजीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी, और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें।
बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं, यूटीज में इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals, because India needs a ramp up on social infrastructure, government has made a provision for 8,100 crores, that will be the total outlay, which will be going in the form of viability gap funding. So in general, for most projects which are supported by government or states or the statutory bodies, 20% is what is given as viability gap funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30% viability gap funding. So the quantum is increased from 20 to 30%. Through this, we expect that the urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल, ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20% ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First, in space, you know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing स्पेस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो भी योगदान दे रही हैं। ISRO's available facilities for even testing their products.
So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the और हमारी ये कोशिश है कि इसरो को जो भी निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां मदद पहुंचा रही हैं, उनके लिए हमारी योजनाएं मददगार साबित हों, ताकि फंड मुहैया करवाया जाना और फंड की उपलब्धता की कमी इन कंपनियों को ना आए। Also, for future projects for planetary explorations and outer space travel, it will also be open for private sector. So in short, private sector स्पेस से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, अगर निजी कंपनियां आगे आती हैं और वो मददगार साबित होती हैं, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे रिसर्च किया जाता है, तो भी हम जो पैसे की उपलब्धता है वो कराने के लिए तैयार हैं। For Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work, they don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, data about India, paying through their nose for some good work that they do for India itself. So